Welcome dear students. Here I am again with another video. Topic is refrigerants. So let us start. First of all, we will discuss about the definition of the refrigerant. So refrigerant is the fluid that is used for heat transfer in a refrigeration system, and it is meant to absorb the heat during the evaporation from the region of low temperature and pressure, and then it releases the absorbed heat during the condensation at the region of higher temperature and pressure. इसे हम हिंदी में भी समझ सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट वो फ्लूइड है जो कि किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एवोपोरेटर में जो कि लो टेम्परेचर या प्रेशर पे काम करता है वहाँ से हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, और यही हीट को वो कंडेंसेशन के समय कंडेंसर में जो कि हायर टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करता है रिलीज करता है. So this is the definition of the refrigerant. Let us move to the another slide. Another slide covers the classification of refrigerant. Refrigerant classification can be broadly divided into major category. One is the primary refrigerant and second is the secondary refrigerant. So let us discuss about the primary and the secondary refrigerants. So primary refrigerants are the refrigerants which cool the substance or space directly by absorbing the heat, and it absorbs the heat during the evaporation in the evaporator, and then it releases heat energy during condensation in the condenser. So this is the simple definition of primary refrigerants कि primary refrigerants जो होते हैं वो directly heat को absorb करते हैं evaporator में और उस absorbed heat को वापस condenser में release करते हैं. And this is also known as direct expansion system. ये जो primary refrigerants हैं और इस पे बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं अमोनिया, freon, sulfur dioxide, carbon dioxide, etc. These all are the primary refrigerants, and this fluid provide refrigeration by undergoing a phase change process in the evaporator, and generally these are called as वेपर रेफ्रिजरेंट. ये क्या करते हैं, ये अपना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फेस चेंज करके प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि एवोपोरेटर में व्हाट हैपेंस डियर स्टूडेंट्स, एवोपोरेटर में जो लिक्विड फेस होता है वो वेपर फेस में कन्वर्ट होता है और हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है. और सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द कंडेंसर. कंडेंसर में क्या होता है, जो कि वेपर फेस होता है वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पर हम जो एवोपोरेटर से हीट ऑब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट वो कंडेंसर में रिजेक्ट करता है. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स. Secondary refrigerant, in any refrigeration plant, secondary coolant is used. Has a cooling medium that absorbs the heat from the refrigerated space and transfer it to the primary refrigerant in the evaporator. सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, वो कूलेंट के रूप में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, या हम कूलिंग मीडियम के रूप में हम यूज़ करते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस से क्या करता है, हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, और इस ऑब्जॉर्ब्ड हीट को वो किसको डिलीवर करता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को, जो कि एवोपोरेटर में सर्कुलेट होता है. तो ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है जो कि इन्हें अपनी हीट जो वो स्पेस से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जहाँ पर हमें चाहिए होता है वहाँ से हीट को ऑब्जॉर्व करके वो हीट को वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को देता है, और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पूरे मेन साइकिल में सर्कुलेट होता है. इसमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को हम दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि ब्राइन से या एंटीफ्रीजेस से. Then further, the primary refrigerant can be broadly classified into four categories. One is the halocarbon refrigerant, then second is the azeotrope refrigerant, and third is the inorganic refrigerant, and fourth is the hydrocarbon refrigerant. Let us discuss one by one in short.
Halocarbon refrigerants. So halocarbon refrigerants are all synthetically produced and were developed by Freon family refrigerants. तो Freon family refrigerants के द्वारा ये डेवलप किए गए थे और ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए हम फ्रियोन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और दिस आर फ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन सीरीज, इनमें दोनों ही सीरीज हमें देखने को मिलती है, मीथेन भी और इथेन भी। दे कंटेन वन और मोर ऑफ दिस हेलोजेंस, इनमें क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन, ये जो हेलोजेंस है इनमें एक या एक से अधिक हेलोजेंस मिल सकते हैं। फर्दर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन corrosive and non-irritant to human bodies and eyes. So these are the very beneficial properties of the halocarbon refrigerants कि ये नॉन टॉक्सिक भी है, नॉन फ्लेमेबल भी है, नॉन एक्सप्लोसिव भी है, नॉन corrosive भी है और नॉन इरिटेंट भी है। साथ में ये ऑर्डरलेस भी है और कलरलेस भी है एंड विल नॉट रिएक्ट विद फूड प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस में हम फूड प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं उससे वो कंटिमिनेटेड भी नहीं होता है फूड, एंड विल नॉट रिएक्ट विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल एज वेल। और जो कंप्रेसर में हम लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ करते हैं उसको भी ये कंटिमिनेटेड नहीं करता है। साथ में हैज़ एक्सीलेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के बॉयज, बट देयर इज द biggest disadvantage that these halocarbon refrigerants are responsible for the ozone layer depletion। सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए इसका यूज़ अब इन दिनों में कम होता है या इनको धीरे धीरे प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। तो हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके हैं एग्जांपल R11, R12, R113, R114, R115। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि बेसिकली यानी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशंस। फर्दर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इज आल्सो देयर, फॉर एग्जांपल R22, R123, but some of the halocarbons like hydrofluorocarbons series and such as one R134A, R404A, R407C or R410A, these all are the refrigerants which belongs to hydrofluorocarbons, are the eco-friendly refrigerants, and these are not are responsible for the depletion of the ozone layer. So that can be replaced the chlorofluorocarbon by the hydrofluorocarbon. If one can do this, that can save the environment, protect the environment for from damaging the ozone layer. Then further we will talk about the inorganic refrigerants. Inorganic refrigerants were exclusively used before introduction of the halocarbon। जब तक halocarbon नहीं आए थे उससे पहले तक स्टूडेंट्स ये inorganic refrigerants ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। But these refrigerants are still used due to their inherent thermodynamic and physical properties। इनकी जो कुछ properties हैं जो कि थर्मोडायनेमिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तब इसके कारण ये आज भी कुछ सिस्टम्स में अभी भी हम इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके एग्जांपल हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया, एयर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स। एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट जो है डेट आर द combination of different refrigerants which cannot separated under pressure and temperature and that have the fixed thermodynamic properties। तो ये जो ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हैं वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि हम प्रेशर और टेम्परेचर, हायर प्रेशर और टेम्परेचर पे भी हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड दिस आर हैव द स्टेबल मिक्सचर of two or several refrigerants whose vapor and liquid phase retain identical composition। ऐसे refrigerants जिनका वेपर या लिक्विड फेज जो है वो आइडेंटिकल कंपोजिशंस जो रिटेन करते हैं ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है जो कि स्टेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है वो एजियोट्रॉप कहलाते हैं। और ये जो एजियोट्रॉप्स हैं डेट आर डेजिग्नेटेड बाय द 500 सीरीज। 500 सीरीज से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं R500 that is the combination, that is the mixture of 73.8% R12 and 26.2% R152
And then next example is R502, that is the combination or the mixture of 8.8% R22 and 51.2% R115. Then next example is R50, which is the combination or the mixture of 40.1% R23 and 59.9% R13. So this was all about the azeotrope represents. Then last category of the primary represents belong to hydrocarbons, and most of the hydrocarbon represents are successfully used in industrial and commercial installation. They possess the satisfactory thermodynamic properties, but one bigger disadvantage, these hydrocarbons are highly flammable and highly explosive. And keeping in mind this, growing use in very small commercial system like car air conditioning system. uh, Due to these limitations, we are using in limited area, and this hydrocarbon represents. And the example of this hydrocarbon represents are R170, then ethane C2H6, R290, then propane C3H3, R600, and then butane C4H10, R600A, then isobutane, that is C4H10, and blends of the above gases. So this all are about the hydrocarbons. Then last but not the least, we will discuss about the designation of the refrigerants. Okay, how we can designate a refrigerants. Since a large number of refrigerants have been developed over the years for a wide variety of applications, and the numbering system has been adopted to designate the various refrigerants. From the number, one can get some useful information about the type of refrigerant, about its chemical composition, then about its molecular weight, and so on. All the refrigerants are designated by R and followed by some unique number. Let us see ahead in the next slide. First category of designation belongs to fully saturated halogenated compounds. So here this refrigerant that are the derivatives of CnH2 and plus 2. And for example, this methane is there, then ethane is there, and these refrigerants are designated by RXYZ. XYZ. So three digits are there in ahead of the R, where R X where X is represent X plus 1 indicates the number of carbon atoms, and Y in this formula represents Y minus 1, that indicates the hydrogen atoms, and Z in this formula, Z indicates number of fluorine atoms. And then further rest of the valence number indicate the chlorine atoms. Only two digit indicate that the value of x is 0. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो सभी आप लोग समझ चुके हैं कि हम रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट कर सकते हैं आर एक्स वाई जेड से, जो कि ये थ्री डिजिट से हैं। और यदि दो डिजिट यदि किसी रेफ्रिजरेंट आर के साथ आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर एक्स प्लस 1 जो है बॉयज़ वो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई माइनस 1 जो है बॉयज़ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है बॉयज़ वो फ्लोरीन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। सपोज द R22 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका हम डेजिग्नेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर x जैसा आप देख रहे हैं कि पहला जो डिजिट है वो 0 है, और 0 होने के कारण x प्लस 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। x प्लस 1, x चूँकि 0 है तो 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, एंड दिस 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो यदि कार्बन एटम यदि 1 है तो इसका मतलब ये डिराइवेटिव ऑफ मीथेन ग्रुप से है, और यदि कार्बन एटम यदि 2 होते तो हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते थे कि वो डिराइवेटिव इथेन ग्रुप का है। सो सेकेंड इज द नंबर इज 2, y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू यदि 2 है तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे y माइनस 1, y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज 2, 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1, or this value will represent the number of hydrogen atom. So number of hydrogen atom here is 1. Then z is 2, z is 2, so z represents the number of फ्लोरीन एटम्स। तो फ्लोरीन एटम्स हमें मिल गए
अब चूँकि ये आप देख रहे हैं मीथेन ग्रुप से है, तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि जो CH4 यानी टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, इसमें टेट्रावैलेंट होने के कारण 4 एटम्स होना चाहिए। तो चूँकि 2 तो फ्लोरीन एटम है, बाकी जो हैं वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हमें मालूम है कि 1 है, फ्लोरीन एटम भी हमें मालूम है कि 2 है। तो 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 माइनस 2 डेट विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है बचा वो आपके क्लोरीन एटम से वो बैलेंस किया जाएगा। सो केमिकल फार्मूला जो हो गया R22 का इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये एल्केन्स फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला है कार्बन, कार्बन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मालूम है 1 है, तो ये 1 आ गया। फिर H है, H जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1। देन क्लोरीन एटम भी हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला बैलेंसिंग करके, तो वो भी 1 है। और फ्लोरीन एटम्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो F2 है। तो ये फार्मूला हो गया आपका मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो R22 जो है वो आपका मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन हो गया, जो कि R22 के नाम से जाना जाता है। इन दिस मैनर वी कैन डेजिग्नेट एनी number of refrigerant, students. Then next about the inorganic refrigerants, and these inorganic refrigerants are designated by the number 7 followed by the molecular weight of the refrigerant, जिसको हम राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है अमोनिया है, या फिर मॉलिकुलर वेट जैसे अमोनिया का हम जानते हैं 17 है, NH3 का आप जानते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन 14 है और H जो है 3 है। तो 14 + 3 = 17, इसीलिए अमोनिया को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं 7 के आगे हम उसका मॉलिकुलर वेट ऐड कर देंगे जो कि 17 है। तो R717 इज़ द डेजिग्नेशन फॉर अमोनिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो उसका मॉलिकुलर वेट 44 है। कैसे है बॉयस, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 2 है, 16 × 2 32 + 12 डेट इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पर जो मॉलिकुलर वेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, इसीलिए डेजिग्नेशन है उसका हुआ R7 फॉलोड बाई molecular weight of the carbon dioxide, that is 44. So R744 is the designated for carbon dioxide. Similarly for water, molecular weight is 18, H2O, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 16, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डेजिग्नेट कर सकते हैं वाटर को R718। इन दिस मैनर द इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स कैन बी डेजिग्नेटेड। दिस वाज ऑल अबाउट the refrigerants, its classification, and about the designation for the refrigerants of the halocarbons and the inorganic form. So thank you all of you for patience listening. I am stopping my presentation here.